آج الیکشن کمیشن میں کافی گہما گہمی ہے، عام اجلاس بھی ہو رہا ہے، کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی آئین و قانون کے مطابق آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا، ملک کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ مزید کہا کہ امریکہ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پاکستانیوں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اس ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ سے۔ جی غلام مرتضیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے کی گئی ہے، اور امریکی سفیر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے اور پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی سفیر نے یہ بھی کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کروائیں، اور امریکہ اس امر کی جو حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ امریکی سفیر اور دیگر جو عملہ ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے جو رہنما منتخب کریں گے عوام، ان کے ساتھ بھی مل کر کام کرتا رہے گا، اور پاکستان کے ساتھ امریکہ چاہتا ہے کہ گہرے اور وسیع تعلقات ہوں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں۔ جی غلام مرتضیٰ، ذرا ٹائمنگ کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آج الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے، صدر مملکت سے ملاقات کے حوالے سے، میٹنگ کے حوالے سے، الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تو آج یہ جو ٹائمنگ تھی ملاقات کی، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا، کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ بہت اہمیت کا آج دن ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ابھی ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں ایک تو صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات کے لیے صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اور ہمارے ذرائع اس بات کے جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ، آج کی اس ملاقات کے حوالے سے آپ سے تفصیلات جان رہے تھے۔ امریکہ کی آئین و قانون کے مطابق آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے چیف سیکرٹری سے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو 90 روز میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے مشاورت کے لیے خط لکھا ہے۔ اس سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں اجلاس میں فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ان کے انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر کے پاس جانا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آج اس صدارت میں کیا جائے گا۔ اجلاس میں صدر کے خط کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے نمائندوں کو آج مدعو کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما 2 بجے جبکہ جے یو آئی کا وفد 3 بجے الیکشن کمیشن پہنچے گا۔ شہباز شریف کو 25 اگست، آصف علی زرداری کو 29 اگست کو بلایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کے آفس کے باہر موجود ہیں نمائندہ پی این این شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا شبیہ کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اجلاس کیا اس وقت جاری ہے اور کن امور پر گفتگو ہو رہی ہے؟ صدر مملکت کے خط کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن میں جو اس وقت اہم اجلاس ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس میں نہ صرف جو سیکرٹری الیکشن کمیشن اور ممبران الیکشن کمیشن ہے بلکہ جو الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے۔ آئینی اور قانونی پہلوؤں سے جو ہے جائزہ لیا جا رہا ہے انتخابات کا۔ اس کے علاوہ صدر کا جو خط ہے اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، بریفنگ دی جا رہی ہے، اور کیا صدر کو جوابی خط دیا جائے گا یا ملاقات کی جائے گی، اس کا فیصلہ بھی آج اجلاس میں ہی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس وقت الیکشن کمیشن میں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آج سے آغاز کر دیا ہے، اور آج 2 بجے پاکستان تحریک انصاف جبکہ 3 بجے جو ہے جے یو آئی کا جو وفد ہے وہ الیکشن کمیشن میں مشاورت کے لیے آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر سمیت دیگر افراد شامل ہو گئے، جبکہ جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ اور عبدالغفور حیدری سمیت جو مختلف افراد ہیں وفد میں وہ یہاں پہ شامل ہوں گے۔ ان سے انتخابات کے حوالے سے، انتخابی شیڈیول کے حوالے سے، انتخابی فہرست کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ انتخابی تاریخ جو ہے انتخابات کی اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے 25 اگست کو جو ہے شہباز شریف سے مشاورت کی جائے گی، اور جبکہ 29 اگست کو جو ہے جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری ان سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہی کہا گیا کہ پارٹی چیئرمین خود
या अपने तरफ से जो किसी वफ्द को जो है वो अपनी नुमाइंदगी में यहाँ पे भेजे ताकि उनसे मुशावरत की जा सके। जी अच्छा शबिया, जिस तरह आपने बताया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के जो हैं वो नुमाइंदगान जो वफ्द है वो आज मुलाकात करेगा इलेक्शन कमीशन से, तो ये वफ्द कितने अफराद पर मुश्तमिल होगा और कौन इसकी नुमाइंदगी करेगा? जी हमारे ज़राए का यही बताना है कि 4 से 5 अफराद पर जो है वफ्द मुश्तमिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इतनी ही अफराद की तादाद जो है JUI के वफ्द की भी होगी, लेकिन टाइमिंग दोनों जो वफूद हैं उनकी मुख्तलिफ है। 2 बजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आएगा, यहाँ मुशावरत की जाएगी, और उसके बाद जो है JUI का वफ्द जो है उसका 3 मुकर्रर किया गया है। 3 बजे वो आएंगे, मुलाकात करेंगे, और उसके बाद जो है बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए मुख्तलिफ तारीख। ठीक है, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मुलाकात के अंदर शामिल होंगे और इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ ही शबी आप मौजूद रहिएगा। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, आप बताइएगा कि आज की इन मुलाकातों के हवाले से खुसूसी तौर पर PTI की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, और आप क्या देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करने जा रहा है आज सदर से मुलाकात के हवाले से भी? जो सदर चूँकि उनकी एक आईनी हैसियत है और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो मुतवक्का तौर पर आज मुलाकात हो सकती है और यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से उनको ख़त लिखा जा सकता है। दूसरी सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम कुछ चीज़ों पर कंफ्यूज है बेसिकली, चूँकि जो मरदमशुमारी है उसके नतीजे में जो हल्का बंदी होनी है उसमें अभी तक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे पीपल्स पार्टी समेत कई बड़े जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहती हैं कि जो इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो, इसलिए मरदमशुमारी जो है वो उसकी बुनियाद पर जो हल्का बंदी होनी है वो ना की जाए और पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर जो है मामला उसी पर इलेक्शन करा दिए जाए। जबकि नून लीग की कोशिश इसलिए है कि वो चाहती है कि नवाज शरीफ जो है वो सितंबर के आखिर में, चूँकि उन्होंने वापस आना है और उनके साथ जो लीगल उनके मामलात हैं वो हल हो जाएं और उसके बाद इलेक्शन हो। तो इस वक्त थोड़ा सा पॉलिटिकल जमातों में जो है वो कंफ्यूजन है इस हवाले से। तो अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आज उन्होंने इंटरनेशनली भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारा प्रेशर है जिसमें उन्होंने आज अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है। उनकी तरफ से भी यकीनदानी कराई गई है पाकिस्तान को कि वो हर मुमकिन ताज़न अमेरिका करेगा इलेक्शन के हवाले से। यानी आज बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सी मुशावरत हो रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बहुत आपको लग रहा है कि प्रेशर है। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद थे और हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी में हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। अब एक अहम सवाल है, आम इंतखाबात कब होंगे? ये वो सवाल है कि जिस पर एक आइनी, कानूनी और सियासी बहस का आगाज़ हो चुका है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखते हुए इंतखाबी तारीख देने का अपना आइनी हक जताया है, तो वहीं सादा कानून साजी के जरिए ये मामला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बनाया गया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का 90 रोज़ में इनाकाद नामुमकिन करार दिया है। पीपल्स पार्टी हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में कोई वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाती नजर नहीं आ रही है। जबकि इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया गया। इस मामले को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त 2023 को तहलील कर दी थी। आइन के आर्टिकल 48 सब क्लोज 5A के तहत ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि वो अगर असम्बली तहलील करें तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए खुद इलेक्शन की तारीख देंगे। लेकिन शहबाज हुकूमत ने सादा कानून साजी के जरिए जून 2023 में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) और 58(1) में तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत का यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। और एक और अहम कानूनी नुक्ता यह है कि आइन का आर्टिकल 51 सब क्लोज 5 ये वाज़ेह कहता है कि नई मरदमशुमारी मंजूर हो जाने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें आबादी के तनासुब से सूबों को दी जाएं और नई मरदमशुमारी की
की सूरत में आबादी के लिहाज से उसी 80 आर्टिकल 51 के सब क्लोज 3(1) में जहां कौमी असम्बली की 272 जनरल नशिस्तें हैं और 60 मखसूस नशिस्तों के साथ ये तादाद 332 बनती है, उसे आईनी तरमीम के जरिए तब्दील करना होगा। लेकिन इस ऑप्शन पर अमल के लिए ना कौमी असम्बली मौजूद है, ना ही आईनी तरमीम के लिए साबका कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत थी। लेकिन इसका रास्ता इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्ट के चैप्टर 3 में मौजूद आर्टिकल 17 क्लॉज 2 में मौजूद है, जहां आइन के आर्टिकल 51 में मौजूद सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन के पास आबादी के तनासब से हदबंदी का इख्तियार है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह का वक्त दरकार है। और यूं 9 अगस्त को तहलील होने वाली असम्बली, जिसके लिए इंतखाबात 9 नवंबर से पहले होना लाजिम है, वो नहीं हो सकते और यूं एक कानूनी और आईनी बहस का आगाज होता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 90 रोज में इलेक्शन होना आईनी ज़रूरत है, कोशिश होनी चाहिए इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। अगर जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो उसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया, ये सवाल किया गया। बिल्कुल, ये और अहम मामला है, अहम रिमार्क्स हैं। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया है। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब, समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको इस अहम मामले के हवाले से भी तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, जहां पर एक जानिब इलेक्शन कमीशन में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। सदर ममलिकत ने भी इलेक्शन कमीशन को मीटिंग के लिए ख़त लिखा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना आईनी ज़रूरत है, कोशिश होनी चाहिए इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। अगर जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो इसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब कर लिए गए। समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो आज तोशाखाना केस की समाअत है और अहम सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मौतली की दरख्वास्त पर आज ये समाअत होने जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का रिकॉर्ड अदालत पहुंचा दिया। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की एंट्री गेट पर तलाशी ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। अहम मामला है जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का रिकॉर्ड अदालत पहुंचा दिया है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की एंट्री गेट पर तलाशी ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। इस अहम मामले के हवाले से 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत करेगी। इस हवाले से इस केस की अहमियत बढ़ जाती है। चेयरमैन पीटीआई को सुने बगैर सजा दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से कल ये रिमार्क्स दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का रिकॉर्ड पहुंचा दिया है और अब ये रिकॉर्ड अदालत के अंदर मौजूद है। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत आज होगी और तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस का रिकॉर्ड अदालत पहुंचा दिया है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की एंट्री गेट पर तलाशी ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। जी हाँ, तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मौतली की दरख्वास्त पर ये आज समाअत होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे आदिल अब्बासी से। आदिल, ये आज समाअत होने जा रही है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी आदिल, देखिए अब से कुछ देर बाद
देखिए, अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना केस है उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। 2 रुकनी बेंच है, डिवीज़न बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। अब से कुछ देर बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर गुज़िश्ता समाअत पर जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 हफ्तों का वक्त तो नहीं दिया गया, ताहम 1 दिन का वक्त देते हुए समाअत जो है मुलतवी की गई थी, और इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ताहम अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिकॉर्ड जो है वो भी पहुँचा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब से कुछ देर बाद यही बताया जा रहा है कि 12 बजे इस केस की समाअत होगी, जबकि इस जो सारा केस है। अच्छा आदिल, 12 बजे तो ये समाअत होनी थी, अब तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, कब तक समाअत शुरू हो जाएगी? देखिए, इसी तरह होता है, डिवीजन बेंच जो है वो 12 बजे अपने केसेस की समाअत करता है, आगाज़ करता है। दीगर केसेस भी होते हैं, ताहम अब जो डिवीजन बेंच है वो दीगर केसेस की समाअत कर रहा है। अब बताया ही जा रहा है अब से कुछ देर बाद तोशाखाना केस की तो कुछ देर बाद ही ये समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। तो तोशाखाना केस की समाअत है और इसमें आज ये डेवलपमेंट सामने आई है कि ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया है। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त पर समाअत के लिए ख्वाजा हारिस पेश नहीं होंगे। तोशाखाना केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत दरख्वास्त में भी ख्वाजा हारिस वकील नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर करेंगे। ये भी एक अहम मामला है। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। जना हाउस हमला केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का, चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम अटक जेल रवाना की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अटक जेल में पूछगछ की जाएगी। जी, और साथ ही साथ पूछगछ के बाद तफ्तीशी टीम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। तफ्तीशी टीम अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत पेश करेगी, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश करके गिरफ्तारी अल्तवा में रखी जाएगी। जिना हाउस हमला केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश का फैसला किया गया है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम अटक जेल रवाना की जाएगी। शिराज निसार हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शिराज, बताएगा कि ये तफ्तीशी टीम कब अटक जेल रवाना की जाएगी? ये जेआईटी जो बनी हुई है तफ्तीश करने के लिए, उसके सरबराह हैं डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर। उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ही इस बात की तस्दीक की थी कि कानून के मुताबिक यहाँ तो परवाना भी भिजवाया जा सकता है, इमरान खान को तलब भी किया जा सकता है, जिस तरह बहुत से केसेस में पहले भी किया जाता रहा है, और तफ्तीशी टीम भी जा सकती है, ये कानून में मौजूद है। तो इमरान केशवर जो डीएजी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि किसी भी वक्त जो है वो तफ्तीशी टीम जो है वो जा सकती है और अटक जेल में जाके तफ्तीश की जाएगी। खासकर जो जना हाउस का मुकदमा भी ज़ेर तफ्तीश और उसकी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके अदालत में पेश करवानी है, इसीलिए इमरान खान से जो तफ्तीशी टीम जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शिराज निसार हमारे साथ मौजूद थे। अब जड़ावाला का रुख करेंगे, जहां पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो हैं वो दौरे करते रहे हैं और चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जड़ावाला पहुंच गए। जहांगीर तरीन ने मसीही बस्ती और गिरजाघरों का दौरा किया। जहांगीर तरीन ने मसीही आबादी में 1 करोड़ रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर की तामीर का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जड़ावाला पहुँच गए हैं और ये उनके वहाँ पर जब वो पहुँचे तब के मनाजिर हैं। जहांगीर तरीन ने मसीही बस्ती और गिरजाघर का दौरा किया। जहांगीर तरीन ने मसीही आबादी में 1 करोड़ रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर की तामीर का ऐलान भी कर दिया है। वो वहाँ पर मसीही बरादरी से मिले, उन मुतासरीन से मिले जिनका वहाँ पर नुकसान हुआ था, और उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया है कि वो 1 करोड़ रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर की तामीर करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जड़ावाला पहुँचे हैं। इससे कबल दीगर सियासी रहनुमा भी वहाँ पर पहुँचे, निगरां वज़ीर आज़म भी वहाँ पर पहुँचे थे, अब जहांगीर तरीन भी वहाँ पर पहुँचे हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अजमल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अजमल मलिक, बताइएगा, जहांगीर तरीन जड़ावाला पहुँचे हैं, मसीही बरादरी से मुलाकात की है, क्या कहना था उनका इस मौके पर?
बिल्कुल, जहांगीर तरीन इस वक्त पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जड़ावाला में पहुंचे हैं कुछ देर कबल, और उन्होंने वहां पे मसीही इबादतियों और गिरजाघरों का दौरा किया, और उस मौका पर उनको मकामी कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। उनके साथ जो है वो इसाक अकवानी, चौधरी ज़हीरुद्दीन और नुमान लंगड़ियाल भी साथ थे। और इस मौका पर जहांगीर तरीन ने जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिसके हवाले से उनका कहना था कि साबिक़ सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन जो तामीरात और मवासलात के मिनिस्टर रहे हैं माजी में, और वो इस कमेटी की हेड करेंगे, जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तामीर करवा के देगी। इसके साथ साथ उन्होंने 16 अगस्त को जो सानिया हुआ था जड़ावाला में, इसकी मजम्मत की है, और उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो इस वाक़या के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जहांगीर तरीन का ये कहना था। शुक्रिया आपका अजमल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कुछ मौशी सतह के हवाले से। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बुलंद परवाज जारी है। इंटरबैंक में आज डॉलर 55 पैसे महंगा होकर 300 रुपये और 19 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी हां, ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। ये डॉलर की सूरत हाल है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में आज डॉलर 55 पैसे महंगा होकर 300 रुपये 19 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, और डॉलर जो कि परवास करता जा रहा है, उड़ान जो है वो भरता जा रहा है। इंटरबैंक में आज डॉलर 55 पैसे महंगा होकर 300 रुपये 19 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। तो डॉलर की ये सूरत हाल है। इंटरबैंक में आज डॉलर 55 पैसे महंगा होकर 300 रुपये 19 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? बिल्कुल, डॉलर की कीमत में बदस्तूर जो है इजाफा जारी है। इस वक्त भी जो है डॉलर की कीमत में तकरीबन 55 पैसे का इजाफा हो चुका है। इस वक्त डॉलर 300 रुपये 19 पैसे पर इंटरबैंक में ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में आज जो है अब तक 2 रुपये का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 314 रुपये तक पहुंच चुकी है। इससे कबल जो है डॉलर की हाई कीमत है वो 315 रिकॉर्ड है। 1 रुपये के बाद जो है डॉलर उसी कीमत पर आ जाएगा, और इम्कान है कि आइंदा दिनों में ये सिलसिला मजीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद थे। रुक करेंगे गुजरावाला का, जहां पर बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ गुजरावाला में शहरियों ने सब डिवीजन ख्याली का घेराव कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने एसडीओ ख्याली को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। गैपको के एसडीओ ने शहरियों को एहतजाज का मशवरा दे दिया। कहा, आवाम कल गैपको हेडक्वार्टर के बाहर होने वाले एहतजाज में शिरकत करे। अगर आवाम घरों से बाहर निकले तो कभी हुकूमत इतना जुल्म ना करे। एसडीओ के एहतजाज के मशवरे पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ गुजरावाला में शहरियों ने सब डिवीजन ख्याली का घेराव कर लिया। अब एक और अहम सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पीसीबी एक खुद मुख्तार इदारा है और इलेक्शन कमीशन के कहने पर ज़का अशरफ को ओहदे से हटा दिया जाएगा? पीसीबी और ज़का अशरफ क्या कहते हैं, ये आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। आपको इस वक्त बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पीसीबी एक खुद मुख्तार इदारा है और इलेक्शन कमीशन के कहने पर ज़का अशरफ को ओहदे से हटा दिया जाएगा? इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा पीसीबी चेयरमैन का क्या मुस्तकबिल होगा, वो क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, जब से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानब से वजारत IPC को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से पूछा गया है कि जो सियासी तकर्रियाँ साबका दौर में हुई हैं उस हवाले से तफसीलात फराहम की जाएँ, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन ज़का अशरफ हैं उनसे हमारी बात हुई, उनके तर्जमान से हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खुद मुख्तार अदारा है और इसका एक अपना आइन है, उसके तहत ही और जहाँ तक ज़का अशरफ ने भी इस हवाले से काफ़ी तौर पर वाज़िया कर दिया कि उन्होंने 19 जून को जो सियासी ओहदा था उनके पास उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बंदा बनकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का जो चार्ज संभाला है। उन्होंने 19 जून को वहाँ से अपना इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो को दे दिया था, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं उनको दे दिया था, जबकि 5 जुलाई को उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर सरबराह के तौर पर यहाँ पर चार्ज संभाला था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत की जानिब से अब जो भी फैसला किया जाएगा उसको कबूल किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक गैर सियासी इदारा है, लिहाजा इस पर किसी किस्म की सियासत ना की जाए तो बेहतर है। दूसरी जानिब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगले माह पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है और उसके साथ साथ जो अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप खेलना है भारत में जाकर, इस हवाले से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को यहाँ से हटाया जाता है या उसको गैर मुस्तहकम किया जाता है तो इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त पूरी तौर पर जल हो चुकी है और अफगानिस्तान के खिलाफ वो 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ भी श्रीलंका में खेल रही है। ज़का अशरफ कल ही वापस पहुँचे हैं और कल वो अपनी क्योंकि सफ़र करके आए थे अपने PCB हेडक्वार्टर में, वो नहीं आए। आज तो यही तवक्को की जा रही है कि वो 4 बजे के बाद PCB हेडक्वार्टर आएंगे और उनका जो IPC मुस्तकबिल में अहम टूर्नामेंट्स पाकिस्तान खेलने जा रहा है और ये बहुत ही अहम डिसीजन होगा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए।